ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಬಿಕಾಮ್ ಥರ್ಡ್ ಸೆಮ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಬಿನಾ ದೀವಾರೋं का घर ನಾಟಕ, ಈ ನಾಟಕದ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಈ ನಾಟಕದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಏನು ಥರ್ಡ್ ಸೆಮ್ಮದ ಗ್ರೂಪ್ ಅದಲ್ಲ, ಆ ಗ್ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆ ಲಿಂಕನ್ನು ಸಹಿತ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಬೆಲ್ಲನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಿರಿ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹಿತ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಬಂದು ಮುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ರಿವೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದರೂ ಸಹಿತ ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, PDF ನೋಟ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಈ PDF ನೋಟ್ಸನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ PDF ನೋಟ್ಸನ್ನು ಇತರ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ. ಇದು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ದರ್ಬಾರ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಥರ್ಡ್ ಸೆಮ್ಮಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ನೋಟ್ಸು. ಇದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ BCom ಥರ್ಡ್ ಸೆಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿಯನ್ನು ಯಾರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾರ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ರಿ. ಸೊ ಆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ. ಆ ವಿಡಿಯೋದ ಸಂಪೂರ್ಣದಲ್ಲೇ ನಾನು ಬಿನಾ ದೀವಾರೋं के घर ನಾಟಕದ ಪರಿಚಯವನ್ನು, ಇದರ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣ ನೋಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ನೋಟ್ಸು, ಈ ಒಂದು ಬಿನಾ ದೀವಾರೋं के घर ನಾಟಕದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾರಾಂಶ, ನಾಟಕಕ್ಕೆ ತತ್ವೋं के आधार पर ಸಮೀಕ್ಷಾ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಹಿತ ನಿಮಗೆ PDF ನೋಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಬಿನಾ ದೀವಾರೋं के घर ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ 1 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಈ 1 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದೆವು ಅಂದ್ರೆ 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾವೆ. 14 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನು. ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕೇವಲ 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಬರೀರಿ. 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಹೀಗೆ 10 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 10 ಅಂಕಗಳಿರ್ತೈತಿ. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಏನಿರ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ನೀವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರೀಬೇಕು? 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಈಚ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ? ಈಚ್ ಕ್ವಶನ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಇದನ್ನು ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತದ. ಸೊ ಸಿಲೆಬಸ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ಇವತ್ತು ನೋಡೋಣ, ಬಿನಾ ದೀವಾರೋं के घर ನಾಟಕ ಕಿ ಲೇಖಿಕಾ ಕಾ ನಾಮ್ ಕ್ಯಾ ಹೈ. ಇದೇನು ನಾಟಕ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಈ ನಾಟಕದ ಲೇಖಿಕಾ ಯಾರು? ಮನ್ನು ಭಂಡಾರಿ. ಲೇಖಿಕಾ ಕಾ ನಾಮ್ ಕ್ಯಾ ಹೈ? ಮನ್ನು ಭಂಡಾರಿ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಮನ್ನು ಭಂಡಾರಿ. ಮನ್ನು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಗಂಡ ಕವಿಗಳ ಹೆಸರಲ್ಲ, ಮನ್ನು ಭಂಡಾರಿ. ಸೊ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಶ್ರೀಮತಿ ಮನ್ನು ಭಂಡಾರಿ ಇವರೊಬ್ಬರು ಮಹಿಳಾ ಲೇಖಕಿ. बिना दीवारों के घर नाटक में कुल कितने पात्र हैं? ಈ ಒಂದು ಬಿನಾ ದೀವಾರೋं के घर ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಾತ್ರಗಳು ಇವೆ? ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 8 ಪಾತ್ರಗಳು. ಎಷ್ಟು ಪಾತ್ರಗಳು? 8 ಪಾತ್ರಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ರೋಲ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರಗಳು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ? ಅಜಿತ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಶೋಭಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಮೀನಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಜಯಂತ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಪಾತ್ರಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ? ಜಿಜಿ ಇದ್ದಾಳೆ, ನೌಕರ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಚೌಧರಿ ಸಾಬ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಬ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ 8 ಪಾತ್ರಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಇವೆ. बिना दीवारों के घर नाटक की नायिका का नाम क्या है? नायिका, इस संपूर्ण नाटक की नायिका का नाम क्या है? शोभा. नायिका का नाम क्या है? शोभा. बिना दीवारों के घर नाटक में शोभा के पति का नाम क्या है? शोभा के पति का नाम क्या है? अजीत. ओके. बिना दीवारों के घर नाटक में जयंत की पत्नी का नाम क्या है? जयंत की पत्नी का नाम क्या है? मीना. क्या है? मीना. नेनपिटुकोळ्ळि. बिना दीवारों के घर नाटक में कुल कितने अंक हैं? नाटक ಎಷ್ಟು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಜನೆಯಾಗಿದೆ? 3. कितने? 3 भाग में है. कितने भाग? 3 भाग. अंक मीन्स भाग होता है, 3 भाग में है. बिना दीवारों के घर नाटक में शोभा की बेटी का नाम क्या है? शोभा की बेटी का नाम क्या है? अप्पी है. ओके. बिना दीवारों के घर नाटक में अजीत की पत्नी का नाम क्या है?
अजित की पत्नी का नाम क्या है? शोभा। शोभा के पति का नाम क्या है? अजित। ओके। बिना दीवारों के घर नाटक में शोभा कहाँ अक्सर गाना गाने जाती है? रेडियो पर। कहाँ जाती है? रेडियो पर। ओके। मीना शोभा को कौन सा निमंत्रण देने के लिए आती है? गाना गाने का निमंत्रण। कौन सा? गाना गाने का निमंत्रण देने के लिए आती है। बिना दीवारों के घर नाटक किस शहर में चलता है? कलकत्ता शहर। कौन सा शहर? कलकत्ता शहर में यह नाटक चलता है। ओके। शोभा की बेटी अप्पी कितने साल की है? कितने साल की? 6 साल की। कितने साल की है? 6 साल की। 6 इयर्स। 6 साल की है बेटी। ओके। अजित की बहन का नाम क्या है? अजित की बहन का नाम, बहन का नाम इस नाटक में नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पर इस नाटक में उल्लेख जीजी के नाम से होता है। क्या नाम होता है? जीजी। ओके। अजित के घर में नौकर कौन है? अजित के घर में जो नौकर आता है काम करने के लिए, उसका नाम क्या है? बंसी। ओके। शोभा को प्रिंसिपल बनाने का ऑफर कौन देता है? शोभा को प्रिंसिपल बनाने का ऑफर कौन देता है? बनने का ऑफर कौन देता है? जयंत देता है। जयंत कौन है? अजित का दोस्त है। अजित कौन है? शोभा का पति है। ओके। जयंत और अजित कौन है? दोस्त हैं। ओके। देखिए इसके अजित के घर में नौकर कौन है? ओके। बाद में महिला महाविद्यालय में मंत्री कौन है? महिला महाविद्यालय के नौकरी कौन है? मंत्री कौन है? साहनी साहब। मंत्री का नाम क्या है? साहनी साहब। शोभा किस कॉलेज में प्रिंसिपल पद संभालती है? महिला डिग्री कॉलेज। शोभा किस कॉलेज में नौकरी करती है प्रिंसिपल का? महिला डिग्री कॉलेज। शोभा का जन्म स्थान कौन सा है? बरेली। जन्म स्थान कौन सा है? बरेली। राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। शादी के बाद शोभा को पति अजित ने कहाँ तक पढ़ाया? पति अजित ने, शोभा का पति कौन है? अजित है। तो अजित शोभा को शादी के बाद कहाँ तक पढ़ाता है? MA। कहाँ तक पढ़ाता है वो? MA। कहाँ तक पढ़ाता है? MA तक पढ़ाता है। ओके। शोभा के कॉलेज के क्लर्क का नाम क्या है? क्लर्क जो इनके घर में फाइल लेके आता है, मिस्टर चौधरी। ओके। जयंत किस कंपनी में काम करता है? जयंत किस कंपनी में काम करता है? अंग्रेजी कंपनी में। जयंत कौन है? अजित का दोस्त। ओके। अंग्रेजी कंपनी में काम करता है। मीना कितने महीने के लिए कलकत्ता आई थी? मीना कौन है? जयंत की पत्नी है, लेकिन अब उन दोनों का तलाक हो चुका है। जयंत का और मीना का तलाक हो चुका है। ओके। देखिए शादी के बाद कितने महीने में जीजी विधवा हो गई थी? 6 महीने में। जीजी कौन है? अजित की बहन है। ओके। बड़ी बहन है। कितनी बड़ी है वो? 10 साल बड़ी है। ओके। कितने महीने में उसका विधवा हो गई थी वो? 6 महीने में। अपनी पोती को परीक्षा में पास करने के लिए शोभा के घर कौन आता है? शोभा के घर कौन आता है? सेठ संपतलाल। क्यों? क्योंकि उसकी पोती कमला जो है फेल हो गई है, और सेठ संपतलाल चाहते हैं कि उसकी पोती पास हो जाए। और सेठ संपतलाल क्या है? बहुत बड़े अमीर हैं। उनका चावल का कारोबार है। ओके। अंत में अजित की नौकरी कहाँ लगती है? वर्मा शेल में। कहाँ लगती है? वर्मा शेल में। शोभा और जयंत को कौन शक की नज़र से देखता है? शोभा और जयंत को। शोभा अजित की पत्नी है, और अजित का दोस्त कौन है? जयंत है। तो शोभा और जयंत को शक की नज़र से कौन देखता है? खुद शोभा का पति और जीजी, शोभा की ननद जीजी। ओके। बिना दीवारों के घर नाटक प्रकाशन कब हुआ? 1966। 1966। बिना दीवारों के घर नाटक का प्रकाशन कब हुआ? 1966 में यह नाटक प्रकाशित हो गया। कौन सा नाटक? बिना दीवारों का घर। ओके। मन्नू भंडारी के
किस कहानी पर फिल्म बनी है? यही सच है, कहानी का नाम है यही सच है। इस पर जो है रजनीगंधा नामक फिल्म बनी है। कौन सी? रजनीगंधा नामक फिल्म। मन्नू भंडारी पति राजेंद्र के यादव के साथ मिलकर कौन सा उपन्यास लिखा है? 1 इंच मुस्कान। मन्नू भंडारी अपने पति राजेंद्र यादव के साथ मिलकर कौन सा उपन्यास लिखती हैं? 1 इंच मुस्कान, जो 1961-62 में प्रकाशित होता है। ओके। मन्नू भंडारी को किस कहानी के लिए व्यास सम्मान पुरस्कार मिला है? एक कहानी यह भी। कौन सा? एक कहानी यह भी। एक कहानी यह भी के लिए इनको क्या हुआ है? व्यास सम्मान मिला है। मन्नू भंडारी का जन्म कब हुआ? 3 अप्रैल 1931 में हुआ। कब हुआ? 3 अप्रैल 1931 में क्या हुआ? जन्म। किसका जन्म हुआ? मन्नू भंडारी जी का जन्म हुआ। ओके, तो इसके बाद में हम देखते हैं मन्नू भंडारी का जन्म कहाँ हुआ। देखिए, भानपुरा गांव है, गांव का नाम है भानपुरा, जिला है मंदसौर, राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भानपुरा नामक गांव में इनका जन्म हुआ। मन्नू भंडारी का बचपन का नाम क्या था? बचपन में मन्नू भंडारी जी को सभी लोग क्या करते थे? महेंद्र कुमारी कहकर बुलाते थे। इनका बचपन का नाम था, लेकिन इनके जो दादा नाना थे ना, वो इनको मन्नू करके बुलाते थे, प्यार से मन्नू करके बुलाते थे। इसलिए इन्होंने जब भी अपनी साहित्य की रचना की तो आगे इन्होंने कौन सा नाम प्रयोग किया? मन्नू नामक प्रयोग किया। तो इनके बचपन का नाम क्या है? महेंद्र कुमारी। और इनके नाना इनको दादा किस नाम से बुलाते थे? मन्नू के नाम से। ओके। मन्नू भंडारी का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? मन्नू भंडारी जी का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है आपका बंटी। देखिए, आपका बंटी। ओके, आपका बंटी उपन्यास जो है धर्मयुग पत्रिका में, पत्रिका का नाम क्या है? धर्मयुग। धर्मयुग पत्रिका में धारावाहिक के रूप में, जैसे आप घर में सीरियल देखते हैं ना, उसकी कहानी बहुत लंबी होती है, लेकिन पार्ट बाय आपको सीरियल रोज देखने के लिए मिलता है। उसी तरह आपका बंटी नामक उपन्यास, जो बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है मन्नू भंडारी का, वह धर्मयुग पत्रिका में धारावाहिक के रूप में छपती थी। ओके। मन्नू भंडारी के पति का नाम क्या है? राजेंद्र यादव। ओके। शोभा की ननद का नाम क्या है? मैंने पहले ही बताया, शोभा की ननद का नाम क्या है? शोभा की ननद का नाम मतलब इसके पति का बहन। ओके, तो क्या है? जीजी है उसके नाम। और जीजी अजित से कितने साल बड़ी है? जीजी अजित से कितने साल बड़ी है? 10 साल बड़ी है। कितने साल बड़ी है? 10 साल बड़ी है। आपको परीक्षा में पूछा जाएगा। अजित और जयंत में कौन सा रिश्ता है? अजित और जयंत में कौन सा रिश्ता है? दोस्ती का। कौन सा रिश्ता है? दोस्ती का। ओके। मीना कहाँ तक पढ़ी है? मीना किसकी पत्नी है? जयंत की पत्नी है, लेकिन जयंत और मीना में तलाक हो चुका है, तो मीना कहाँ तक पढ़ी है? BA तक। कहाँ तक? BA तक। ओके। नाटक का प्रमुख स्त्री पात्र कौन सा है? इस संपूर्ण नाटक का, बिना दीवारों का घर, इस संपूर्ण नाटक का स्त्री पात्र कौन सा है? शोभा। तो आपको यह ध्यान में रखना है छात्रों। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको यह ध्यान में रखना है। अब मैं इसको रफ करता हूँ। ओके, इसको रफ करता हूँ और आप समझने की कोशिश कीजिए कि इस नाटक में क्या होता है। देखिए, इस नाटक में मेन आपको अजित मिलेगा। ओके, अजित। ओके, अजित की पत्नी का नाम क्या है? शोभा। ओके, अजित की पत्नी का नाम क्या है? शोभा है। यह आपको ध्यान में रखना है। अजित है, शोभा। मेन पात्र कौन है? शोभा। संपूर्ण नाटक जो है शोभा के ऊपर ही चलता है। तो अजित की पत्नी का नाम क्या है? शोभा। ओके, अजित की बहन का नाम क्या है? जीजी। अजित की पत्नी का नाम क्या है? जीजी। अजित के दोस्त का नाम क्या है?
जयंत। अजीत किसके ऊपर शक करता है? पत्नी के ऊपर शक करता है। क्यों? उसको लगता है कि शोभा किससे प्रेम करती है? जयंत से। तो आज के लिए इतना बस। कल हम इसकी कहानी के बारे में, इस नाटक के सारांश के अन्य भागों के बारे में चर्चा करेंगे। कोई भी सवाल हो तो YouTube पर लिंक में कमेंट कीजिए।